Assalamualaikum everyone. Welcome to the first ever webinar called Let's Talk Aesthetics, which has been powered by Tayyib Traders. Today I'm joined with the esteemed Dr. Aisha Gayas, who's currently an MBBS and FCPS in dermatology, and she's also an associate professor at King Edward Medical University. Um, just before we start, I would just like to give a small brief history of who we are. As you, most of you, I hope, would know that Tayyib Traders has been giving laser machines and aesthetic devices to dermatologists across Pakistan and UAE, South Africa, and Afghanistan for the last 10 years or so. We've had a chance to meet a lot of really brilliant doctors across cities across the country. So Let's Talk Aesthetics is an initiative we've taken to bring together talented, brilliant doctors who are doing unique things and challenging the status quo and connecting them to their peers, whether they're their juniors or whether it's seniors who maybe haven't tried these things and want to just kind of get into it and bring them all together on a platform so that we can have better knowledge sharing, better understanding, not just of aesthetics and dermatology, which obviously doctors know better, but on how to run successful businesses, how to run successful laser setups and aesthetic clinics, and really getting into the intersection of these things. Today, I'm joined with such a special guest, Dr. Aisha Gyas, and I don't think I can do her justice, so I'll just tell her to unmute herself and give her introduction to us. Dr. Aisha, the floor is yours. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. And it's such a pleasure to have a galaxy of dermatologists, I must say. And all of them are, mashallah, quite professional and they are skillful people in their own, field. About me, you have said a lot. Actually, I am currently working as associate professor dermatology at King Edward Medical University. And I would not talk much about myself, just a little bit of slogan, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि I have the capacity of going against the odds, against the flow. और अगेंस्ट द फ्लो मैं इसलिए कहूँगी कि देर वॉज नो ट्रेंड ऑफ सेटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स taking up social media platforms for a journey which you can only dream of and represent yourself in front of your public and in nationally as well as internationally. तो ये मेरे लिए एक odd किस्म का जो था ना एक journey था which I took and everyone around me, my family and my friends supported me. And today I really enjoy an esteemed position while I'm using all these social media platforms. And we will talk about my journey shortly. But for now, I am working as associate, and this is just an academic aspect of my life. While today we'll be discussing on certain other things, they are highly non-academic, but they are very important. In our training times and while we are working with our seniors as professors or associates, we are never taught about how to sell ourselves, which is really very important aspect, because ultimately all of you are going to land into the business of dermatology and aesthetics. We are going to open up our own platforms, we are going to open up our own clinics, our own setups, but how do we really represent ourselves? How do we really broadcast ourselves? This is really very important, not only from our perspective, but for the public safety also. Because if we do not speak about these things and we do not broadcast our own viewpoint on this, then rest of the, people who are not really qualified enough are there to speak up, and public is bound to listen to them and follow their guidelines. Then what's the point in criticizing them if we are not in the front line? So it's us who should take the responsibility of being visible to the public, giving our viewpoint very loud and clear, what's right, what's wrong, what is a misconception, what is really not wanted, what is really a need of the time, what are current trends, what are the latest skills in the market. I mean, these are all the things that are very glamorous, very much into the market. People look forward to us. People look forward to listen from us. And we actually lag behind in this. So I truly believe and I truly think that this was the need of the time. And Zarfishar, I really salute you for starting up all with this, because you're the one who have taken the lead और आपने इसको सबसे पहले start किया. अगर आप नहीं करती तो it was already in my head और मैं इसको plan कर रही थी for next couple of months, but you're like a little sister और मैं I am always very happy to see you working with तैयब भाई.
और ये जो आपने लीड लिया ना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव बीन टू सम इंटरनेशनल वर्कशॉप्स, और उसमें जो हमें लास्ट में सिखाया जाता था, दैट वाज हाउ टू बिल्ड अप योर ओन ब्रांड, हाउ टू सेल योर सेल्फ, एंड दिस वाज अ लैकिंग पार्ट इन आवर ट्रेनिंग्स एट पाकिस्तान. I truly feel ke after attending those international workshops, it has helped me a lot in broaden up my mind, broaden up my horizon. And now I know ke there are certain shells which we have self-imposed, and it's really important to break them and come out of our self-imposed shells and speak to the public. Yeah, I'm so honored, Dr. Aisha, but I don't think I can take credit. It's just what I've learned from great countries like the US and China. And, it's just this is how we all grow. And you spoke about many important points, which we're going to explore in detail, but I really want to ask you, let's start from the start. How did you think that you're going to launch a YouTube channel? Because when you did it, people really didn't do it. First, aesthetics in general wasn't a trend in Pakistan up until recently, and putting yourself on social media, this was nobody ever thought of that. So I want to learn, how did you decide that, okay, I'm actually going to start my YouTube channel, and if you were inspired by someone, who was it and what was the process like? जी, ज़ल्फ़िशार बिल्कुल इसी तरह स्क्रैच से शुरू करते हैं. और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो आज हमारे साथ हैं, उनको ये दे वुड बी इन अ हेजिटेशन प्रोसेस जिसमें कि मैं गुजरी हूँ. एंड आई वुड लव कि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को आपके लिए सॉर्ट आउट कर दूँ, स्ट्रीमलाइन कर दूँ, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू ओवरकम दोज हेजिटेशंस. वेल, ज़ल्फ़िशार ने जो पूछा है कि आपने सोचा कैसे कि इसको शुरू करना चाहिए, तो इसमें जैसे हम सब आजकल भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, वो काफ़ी चीज़ें एडवोकेट कर रहे होते हैं. एंड देर आर पीपल हु आर नॉट बाय एनी मीन्स, दे आर नॉट एस्थेटिक फिजिशियंस, बाय एनी मीन्स दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे कैन नॉट एडवोकेट थिंग्स विच दे आर ऑलरेडी एडवोकेटिंग. एंड जब उन चीज़ों को हम, चूंकि सोशल मीडिया यूज तो हम सब कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फेसबुक, वी आर यूजिंग इंस्टा, वी आर यूजिंग यूट्यूब, एंड देन व्हेन वी कम अक्रॉस सच अ मैटर, सच अ कंटेंट ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो फिर उसको देख के बड़ा एक बंदे का दिल कुड़ता है कि नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे है. मतलब वी ट्रूली थिंक नहीं नहीं, ये तो ऐसे कह रही है, ऐसे तो नहीं, ऐसे है. हाइड्रा फेशियल के जो क्लेम्स हैं, नहीं नहीं, दे आर रॉन्ग. ओके, केमिकल पील में जो ये बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है. लेजर के बारे में ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये ठीक नहीं है. वी ऑल थिंक दैट, बट देन हु विल कम अप एंड टेल पीपल के जी ये ठीक है, ये नहीं है. तो फिर मैंने सर्च किया, एंड देन सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में देयर वाज नो चैनल, बल्कि आप कह लें कि उर्दू जुबान में देयर वाज नॉट अ सिंगल चैनल जो कि पब्लिक को गाइड कर सके और जो डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स के ऊपर अपना व्यू पॉइंट दे सके. तो फिर मुझे लगा कि मेरा रास्ता काफ़ी आसान है, बट देन देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज. इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर सोचा ज़रूर कि ये शुरू करना है, बट देन उसके बाद प्रॉब्लम आती थी कि ये करेगा कौन, इतना बड़ा काम है. अभी भी अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि वी आर अपलोडिंग 2 शॉर्ट वीडियोस एवरी डे एंड 2 लॉन्ग वीडियोस एवरी वीक. और अभी मैं बात करूंगी कि ये कंसिस्टेंसी से अपलोड करना सोशल मीडिया पे क्यों इम्पोर्टेंट है. बिकॉज इफ यू वांट टू हैव अ रीच into the public, you have to be consistent with your uploads. It's not just for the monetization purpose that you want to get some money out of it, और आपको उससे कोई फायदा इस तरह का चाहिए, बट आप ये तो कम से कम चाहते हैं ना, while you are on a social media platform, कि उसकी रीच हो, पब्लिक उसको देखे. और जब पब्लिक उससे रिलेटेड चीज़ों को सर्च करे तो यूट्यूब आपकी वीडियो को उनको दिखाए, विजिबल हो जाए. फॉर दैट मैटर यूट्यूब शुड एनकरेज योर चैनल. और आपके चैनल को इनकरेज करने के लिए यूट्यूब को कंपैटिबिलिटी दिखानी पड़ेगी आपके साथ. वो तभी पॉसिबल है जब आप उसके साथ सिंसियरली काम करेंगे. दैट मीन्स कि यू विल बी कंसिस्टेंट इन अपलोडिंग योर कंटेंट. तो फिर ये सारा मुश्किल था कि ये कौन करेगा, कैसे करेगा. एंड देन ऑब्वियसली अभी इसके ऊपर बात भी करेंगे कि व्हाट आर वी एक्चुअली अफ्रेड ऑफ. वी आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ नेगेटिव फीडबैक. तो वो हम ये इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. मैं कहती हूँ शायद 80 to 90% हमारे जो डॉक्टर्स हैं, बिकॉज दे आर द एजुकेटेड लॉट एंड दे कैन नॉट विदस्टैंड द नेगेटिव प्रेशर्स. और वी ऑलरेडी आर वर्किंग इन गुड, आई मीन वी आर वर्किंग विद हाई स्टेटस पीपल. वी डोंट वांट कि हमें बुरे नाम से याद किया जाए, हमें हमारा मजाक उड़ाया जाए या नेगेटिव फीडबैक किसी भी किस्म का, तो हम वहीं से मुड़ जाते हैं पीछे और हम उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाते. बट टुडे आई एम गोइंग टू अर्ज यू ऑल, और मैं आप लोगों को इसका प्रिपेयर कर दूंगी आफ्टर टुडेज वेबिनार. अगर आप लोग उसको पूरा अटेंड करते हैं
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेजिटेशन भी आप लोगों की बच जाएगी। ऑब्वियसली जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, दे ऑलरेडी हैव मेड अप देयर माइंड, दे ऑलरेडी वांट टू लिसन टू इट। इसका मतलब है कि आप लोग सोशली विजिबल होना चाहते हैं, और अगर आप लोग होना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी ताकत दुनिया की रोक सकती है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट। थोड़े से आपको इसमें फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ टेक्निकल लोगों की हेल्प चाहिए होगी, एंड यू कैन ऑल डू दैट। I think that's a very important factor. In fact, this reminds me, जब मैं छोटी थी तो उर्दू क्लास में हमें एक स्टोरी पढ़ते थे कि जिसने सबसे पहले छतरी बनाई थी तो लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था उस वक्त कि ये क्या कर दिया, ये क्या डंडे के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया। लेकिन फिर until it rained and until people needed that umbrella to protect themselves, तो ऐसे ही होता है। और ये आई थिंक ये दुनिया का रूल है, जो बंदा पहला इनिशिएटिव लेता है वो बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करता है। So I think my second question is similar to this and also a little bit going into the depth. Did you have any hesitations? I know you talked about it a little bit, that there's a fear of failure and there's a fear of criticism from your colleagues who are also, of course, creme de la creme of Pakistan and really really educated people. So and then there's another angle to it. I think putting yourself on social media itself is a big task, and a lot of people in Pakistan are very uncomfortable. So I want to know, were there any hesitations in these departments, and if yes, how did you overcome those? Because these are all important factors that I think we'd all like to learn. यस, वेल हेजिटेशंस तो एक तो मैंने बताया कि नेगेटिव फीडबैक का हेजिटेशन मुझे बहुत ज्यादा था, क्योंकि मैं अक्सर औकात देखती थी कि यार सोशल मीडिया पे अगर किसी को रोस्ट करने पे आते हैं ना तो बेइंतहा रोस्ट करते हैं, और मुझे उससे बहुत डर लगता था कि डॉक्टर आयशा गयास ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कह दिया। तो ट्रोलिंग जो है ना, इट्स प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, तो फिर ट्रोलिंग से डर लगता था। दूसरा, आई बिलोंग टू अ फैमिली जो कि बड़े मॉडेस्ट हैं, और इन चीज़ों को मे बी कि वो लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, और बचपन से मैंने यही देखा था कि मेरी फैमिली में कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं था। और ये एक फैक्टर था कि आई ट्रूली फेल्ट कि मे बी सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स वुड नॉट लाइक दैट, मे बी दे वुड टॉक टू माई फादर और मदर, और मे बी दे वुड टॉक टू माई हस्बैंड और मदर इन लॉ कि व्हाट इज शी डूइंग ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाई इज शी सो मच विजिबल, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर बट जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने किसी चीज को एक्सप्लोर नहीं ना किया होता तो आप बहुत ज्यादा डरते हैं, यू हैव द फियर ऑफ अनसीन। बट आज मैं आपको एक बात बता दूं कि हारता वही है जो कंपटीशन का हिस्सा बनता है। हारता वही है जो दौड़ में कोशिश करता है दौड़ने की ना, वही हारता है। तो हार से डरे नहीं। हार इज प्रिटी मच अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी डू फेस दिस थिंग, और जीतता भी वही है जो पहले हार चुका होता है। सो हारने से ना डरें। अब मेरे इसमें सबसे ज्यादा जो एक बंदे को जिसको मैं क्रेडिट दूंगी सबसे ज्यादा कि मेरी हेजिटेशंस को, फैमिली प्रेशर्स को और नेगेटिव फीडबैक को, और फिर मेरे अपने पीयर प्रेशर्स को। आई हैव माई पीयर प्रेशर ऑल्सो। शुरू शुरू में मैं इतना हेजिटेट करती थी कि या खुदा, मेरे एक पीजी ने मुझे बताया, मैडम यस्टरडे आई सॉ योर वीडियो, यू वर टॉकिंग अबाउट फलाना फलाना फलाना। तो मैं बिल्कुल ना ऐसे नीचे मुंह कर लिया कि ये बात ही ना बोले आगे, ये बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए। ये मैं बहुत हेजिटेंट थी शुरू में। इवन मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था चैनल, बट देन मैं किसी को ओपनली कहती भी नहीं थी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और उसमें मैं देखती थी कि प्रोबेबली दिस इज समथिंग जो कि शायद ये बहुत ही कोई शर्मनाक सी बात है किसी को कहना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और इस तरह की बातें इर्द गिर्द में देखती भी थी कि शायद ये कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी को कहना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। तो मैं बहुत ज्यादा हेजिटेंट थी इस मामले में। बट देन एक इंसान ऐसा लाइफ में जरूर होता है जो आपको अपलिफ्ट करता है, जो आपको एनकरेज करता है, और वो ऑब्वियसली वो एक ऐसा फैक्टर होता है कि जो ना चाहे तो आप कर भी नहीं सकते, एंड दैट वाज माय हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस एंड आई विल हेल्प यू। जो जितना भी सोशल मीडिया में टेक्निकल लोगों की हेल्प होती है वो उन्होंने मुझे रख के दिए। मतलब हमारा जो वीडियो एडिटर है जो यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, वो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको देखूं, बट इट्स माय हस्बैंड हु टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपना काम करती हूँ, एंड देन आई हैव अ डेडिकेटेड मेंबर जो कि ये वीडियोस बना लेता है। या मैं हफ्ते में एक दफा या 2 हफ्ते में एक दफा कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, बट देन एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय माय टीम, एंड माय टीम इज बीइंग headed by my husband, and he is the one who I mean encouraged me कि ठीक है, फैमिली के प्रेशर्स होंगे, I'll take that, नेगेटिव फीडबैक होगा, आई टेक दैट, आई हेल्प यू टू गेट थ्रू इट। और बस वो एक होता है। तो आपको अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ है और आपकी सपोर्ट है। बिकॉज अगर एज अ फीमेल मैं बात करूंगी, अब बहुत सारी फीमेल्स होंगी हमारे आज ऑडियंस में जो लोग सुन रहे हैं, तो एज अ फीमेल अगर आपके
आपका हस्बैंड आपके साथ एक पेज पे नहीं है, या आपकी फैमिली आपके साथ इस एक पेज पे नहीं है, तो अभी आप स्टार्ट ना करें, देन इट वुड बी अ प्री मेच्योर एफर्ट। मेरे ख्याल में यू एंड योर फैमिली, दीज आर द टू प्राइम फैक्टर्स। आपको एक पेज पे होना इसमें जरूरी है। और ये जरूरी नहीं है कि आपने जिसने पहले चैनल बनाया वह टोटली एंड डिटो आप उसको फॉलो करें। यू हैव योर ओन स्टाइल, यू हैव योर ओन कंटेंट, यू हैव योर ओन आई मीन एप्टीट्यूड। आप उसको देखें कि आपका किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। मेरा एप्टीट्यूड ज़्यादा है बोलने का, और बिकॉज मैं टीचिंग में हूँ शुरू से, और मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं टीच करती हूँ स्टूडेंट्स को, मेरे अपने ट्रेनीज हैं। मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छी कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा समझा पाती हूँ। दैट्स वाई मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा हूँ। और आप देखें कि आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देयर वुड बी समवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु वुड अपलिफ्ट यू, हु वुड हेल्प यू आउट in order to overcome your hesitations. That's such good advice, and I love the fact that you're so honest about all the guidance and support you got, particularly from your husband, because someone like that, someone who's a rock, is really important. Not just if because you want to start a social media platform, but I think in any business or a new step you take, these kinds of people are the foundation. And they can be your friends, they can be your sibling, they can be your husband or wife, or they can be your parents. So like Dr. Aisha said, you have to identify who that person is in your life. Going from here, and you spoke a little bit about how you have a team and then the kind of content that you have. So I want to ask you, as a dermatologist, when you're going public, what kind of content best resonates with your audience? What is it that they want to see from a dermatologist? Because like you said, because historically doctors ने ये नहीं किया, पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था. There's a lot of non-doctor people that are saying all kinds of things that are misguiding the public and all. So what does the audience want from a dermatologist on a YouTube channel, or on Instagram or Facebook? हम्म, ठीक है जरफिशार, ये बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डज रेजोनेट बेस्ट विद पीपल और पब्लिक, तो उसमें जो है ना, बेसिक जो स्किन केयर है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और पब्लिक यही सुनना चाहती है। बिकॉज हमारी पब्लिक जो है वो ज्यादातर वो है जो अपने ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। सम हाउ और दी अदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ज्यादा रिवाज नहीं है हेल्थ पे इन्वेस्ट करने Yeah. का, हेल्थ के ऊपर फोकस करने का। अभी भी यहाँ पे एस्थेटिक्स के जो बिजनेस हैं बहुत कम है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स पे पहले ही लोग कम स्पेंड करते हैं। दूसरा, अपने लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई ज्यादा खास यहाँ पे रिवाज नहीं है। बट स्टिल जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे या कैसे भी, तो उसको तो पब्लिक सुन सकती है। और वो उसमें जो हमारा कंटेंट ज्यादा पब्लिक के लिए इंटरेस्टिंग होगा, दैट वुड बी ऑन जनरल स्किन केयर। और एक और चीज मैं बताऊं जिसके ऊपर मैं कभी बात नहीं करना चाहती थी और मैं हमेशा डिस्करेज करती थी, बट देन मैं जो मुझे सर्च करना पड़ा, और ये भी एक आप बल्कि मैं आपको बताऊंगी फायदे इसके मुझे क्या क्या हुए हैं सोशल मीडिया इस्टेब्लिश करने के, मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो उसमें एक R&D भी था, तो फिर मुझे ये R&D करनी पड़ी पब्लिक के लिए, बिकॉज पब्लिक सुनना चाहती थी मेरे से टोटके। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट पब्लिक सुनना चाहती है टोटके। और अगर आप थोड़ा सा, चूंकि अब मेरा थोड़ा इंसाइट है, मुझे समझ आ जाती है, तो जिसके मिलियंस में व्यूज होते हैं शॉर्ट वीडियो के या लॉन्ग वीडियो के, दैट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द होम रेमेडीज। और ये मेरे जो सर्जनटोलॉजिस्ट हैं उनको बड़ा अच्छा आइडिया होगा कि पीपल कम कि एक्नी स्कार की होम रेमेडी बता दें, मैसेज आता है कि जी स्ट्रेच मार्क्स की होम रेमेडी बता दें। होम रेमेडी इज सच अ हॉट थिंग फॉर पीपल टू नो कि हर चीज की जैसे ना कोई होम रेमेडी होती है। और सोशल मीडिया पे चूंकि अनक्वालिफाइड लोग ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने ये चीजें बहुत ज्यादा ना पब्लिक के लिए फेमस कर दी हैं कि प्रोबेबली एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय होम रेमेडीज, प्रोबेबली एवरी सोल्यूशन इज देयर इन द होम रेमेडीज, विच एक्चुअली इज नॉट। बट देन पब्लिक आपसे ये सुनना चाहती है, और आपको लेमैन लैंग्वेज में ये बताना है। सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ये इस बात को सुन लें, you have to learn the public language, you have to learn Punjabi, you have to learn Urdu, you have to learn a simple English, ताकि आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। आप यकीन करें, शुरू में जो मैं वीडियोस अपलोड करती थी, अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे जाएं तो मैं भी हंसती हूँ, आप भी हंस सकते हैं। आई टोटली अलाउ यू टू सी माय फर्स्ट 2 to 3 वीडियोस एंड देन गिव मी अ बिग लाफ्टर कि ये क्या था। और मैं अभी भी सोचती हूँ कि यार ये क्या था, मतलब मैंने क्या किया इसमें।
तो मेरी वीडियोस में इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा मैं बोलती थी क्योंकि मुझे वो टर्म्स आती नहीं थी उर्दू में, और मैंने बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज डेवलप नहीं की थी। बट देन मुझे फीडबैक, मैं शुरू शुरू में अपने एक्वेंटेंसेस को वीडियो भेजी कि यार ये मैंने चैनल खोला है और वीडियो है, इसको देखो। तो वो लोगों ने बड़ा कहा कि ये आप किसके लिए बना रही हैं वीडियोस। तो ये क्वेश्चन इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू कि इफ यू आर गोइंग टू सेट अप अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इज इट फॉर योर ओन सेल्फ, इज इट फॉर योर फैमिली? जस्ट आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाई आर यू गोइंग टू डू दैट? If you are planning this thing for the public, then it should be in a language which public understands, and it should include a minimum of your technical terms, a minimum of your English terminology, because आपकी जो पढ़ी लिखी लॉट है वो बहुत कम है। स्पेशली टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, इसके ऊपर पढ़े लिखे लोग कम हैं। इंस्टा के ऊपर फिर भी रिलेटिवली पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, बट यूट्यूब के ऊपर रिलेटिवली कम हैं। सो यू हैव टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। इसके अलावा जो कंटेंट पब्लिक सुनना चाहती है वो है एस्थेटिक्स के, लाइक बोटॉक्स क्या होता है, कौन करा सकता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, और इनके एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने देखना है कि कहाँ पे रूम है, कहाँ पे स्पेस है फॉर यू टू ग्रो, और स्पेस कहाँ पे है जहाँ पे आप एक्सपेंडिचर्स बताते हो। अभी तक जो इन्फ्लुएंसर्स या जो भी चैनल्स बने हुए हैं ऑन एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी, दे डू नॉट टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द प्रोसीजर्स। तो ये आपके लिए एक अच्छा होगा कि अगर आप अपना कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आप उसका एस्टिमेटेड चार्जेस हर जगह पे मेंशन करें। ये पब्लिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू नो कि बोटॉक्स कितना होता है, फिलर्स में कितने पैसे लगते हैं, कौन कौन करा सकता है, क्या एज। और एक मैं और मिसकंसेप्शन, जिस तरह बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को आप भी जानते होंगे एज डॉक्टर्स, जो मेरे पास आते थे शुरू में, वो ये थे कि डॉक्टर साहब हमने तो सुना है कि एक दफा ये करा लो एंटी एजिंग कोई भी प्रोसीजर, तो उसके बाद अगर आप टाइम पे ना कराओ तो आपका मुंह पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। So this was something which was there in the air. Everybody was of the view कि अगर हम नहीं कराएंगे तो probably मुंह बहुत खराब हो जाएगा, and this is their hesitation to opt aesthetic procedures. Then which I made clear, and I have, I mean, I think if not 100, maybe 20 to 30 videos clarifying this issue कि अगर आप नहीं भी कराते हैं तो at least you will look better than you were at the baseline. और इसमें myths हैं, बहुत सारे myths हैं जो कि मार्केट में हैं, और हमने उन मिथ्स को एलिविएट करना है एज डॉक्टर्स। क्योंकि जब हम स्ट्रांगली एक मैसेज शुरू में दे देते हैं ना कि आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, आई एम इनटू दिस बिजनेस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, और तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है शुरू में। देन अगर आप अच्छा मैसेज दे रहे हैं, पब्लिक की जुबान में दे रहे हैं, उनके जो जिस कंटेंट में वो इंटरेस्टेड है उस कंटेंट को आप दे रहे हैं ना, लाजमी तौर पे लोग आपको सुनेंगे और देखेंगे। और ये मैं बताऊं कि शुरू में आपने डिसहार्ट नहीं होना, ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी मैंने तो चूंकि बहुत ज्यादा मुझे वो सुनने में आ जाता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पता है इस चीज का, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि एंटरटेनमेंट अर्न्स बेस्ट व्यूज एंड मनी, बट दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ। सो डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक का जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, इट वुड बी वेरी स्लो इन द ग्रोथ। और YouTube के बारे में भी ये बिल्कुल सच है कि इसकी ग्रोथ सबसे स्लो होती है। YouTube इटसेल्फ सेज सो। YouTube के अलग से भी एडवोकेसी चैनल हैं जिसमें YouTube खुद हमें गाइड करता है कि अगर आपने इस तरह का चैनल बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए। उसमें वो खुद YouTube ये एडमिट करता है कि हेल्थ के ऊपर जो चैनल्स हैं दे आर वेरी स्लो टू ग्रो, एंड यू हैव टू बी लाइक रियली वेरी पेशेंट। और इसमें अगर आपने कुछ जरफिशार और पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे आना चाह रही हूँ कि आज के वेबिनार का डॉक्टर्स को मैक्सिमम फायदा हो। मैं उनको प्रॉपर टेक्निकलिटी थोड़ी सी बता दूं कि ताकि उनको पता हो कि उन्होंने कैसे सेटअप करना है। I think before we get into the technical part, I have one last question on the general social media part for you. कि आपका social media channel, has it helped you build, because it's obviously helped you build a brand, but has that helped you professionally, or has that helped your clinic accumulate a better number of patients, या उससे आपको कोई affect आया, आपने कुछ notice किया? हाँ जी, इस पे बिल्कुल इफेक्ट आया है। शुरू में तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था, बट देन आफ्टर एन ईयर और सो, क्योंकि वी आर इनटू द यूट्यूब आई थिंक फॉर मोर देन 3 years नाउ, और पहला साल तो इतना अच्छा नहीं था, बट उसके बाद अब जब पब्लिक मेरे पास आती है तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह होता है ना कि पेशेंट से फैंस का एक जर्नी होता है। you've got patients and then you've got fans. वो fans जो होते हैं वो आपको आइडियलाइज करते हैं, वो आपकी बातों को जो है ना रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, आपकी ड्रेसिंग को, आपके स्टाइल को, आपकी बातों को, आपकी अपनी हेल्थ केयर रूटीन को। और हमने अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा ह्यूमनाइज करके उनको दिखाना होता है कि सॉरी,
हाँ, तो ये हमने ना उनको बताना होता है कि हम भी ह्यूमंस हैं और हमें कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है, बट देन पीपल वुड कम टू मी और वो मुझे बच्चे बच्चियां जब आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। पेशेंट मेल या फीमेल जो है उसके साथ जो बच्चे आएंगे कहेंगे आंटी आपको हमने टीवी में देखा था, आंटी आपकी हमने वो वीडियोस देखी थी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो फिर कहते हैं आंटी हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने भी डॉक्टर बनना है, हमने ऐसे ही डॉक्टर बनना है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये तो खैर बच्चों वाला एस्पेक्ट है ना, बट देन प्रैक्टिस ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है। और मैं सिंपली एक पेशेंट अगर मुझे कहेगा मिलाजमा का कि डॉक्टर साहब मैं मीजोथेरेपी या लेजर क्यों करवाऊं, अगर वो 100% नहीं है, अब वो सारी जो आधे घंटे की अलाबला मैंने उसे कन्विंस करने में लगानी है ना, एस्थेटिक्स में ऑब्वियसली आपको एक पेशेंट को आधा पौना घंटा तो देना पड़ता है अगर आपने उसको एक अच्छा प्रोसीजर प्लान किया हुआ है। एंड एवरीबडी नोज कि एस्थेटिक्स में इट्स डिफरेंट। एस्थेटिक्स के जो पेशेंट्स हैं, एस्थेटिक्स के जो, उनको हम पेशेंट्स नहीं बोलते, उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं, बिकॉज वो अपने ऊपर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज बट दे जस्ट वांट टू ग्रूम अ लिटिल बिट, और इसके लिए वो अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर योर क्लाइंट्स, दे आर नॉट योर पेशेंट्स। तो जब आपने इस तरह के लोगों को डील करना है तो मैं जस्ट एक वीडियो का रेफरल दे देती हूँ। अच्छा, अब सारी मैंने उनको कहानी आधे घंटे की समटाइम्स मैं नहीं सुना पाती, मेरा एक बिजी क्लिनिक होता है, समटाइम्स आई हैव 70 पेशेंट्स, समटाइम्स आई हैव मोर देन 80 पेशेंट्स टू सी इन वन डे। तो फिर व्हाट डू आई डू कि मेरा एक डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर है, वो क्या करता है कि वो उसी वक्त पेशेंट का फोन पकड़ता है, वहां से यूट्यूब निकालता है और मेरी एक वीडियो निकाल देता है। कहते हैं जी ये वीडियो है, इसमें सारा कुछ आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनके बारे में मैडम ने डिटेल से समझाया हुआ है, इसको प्लीज आप देख लें। या हमारे अपने भी सिस्टम वहां पे मौजूद है, हम वहां पे उनको काफी टाइम वेटिंग टाइम होता है तो वहां पे पेशेंट देख लेता है। और फॉर दैट मैटर अगर पेशेंट आपको एक मैसेज करता है या आपको अपना कंसर्न शो करता है कि वो थ्रेड्स के बारे में सोच रहा है या फिलर्स के बारे में सोच रहा है और आपने उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को मेंशन किया हुआ है, तो व्हाई नॉट रेफर दैट वीडियो टू पेशेंट। हो सकता है जब आप पेशेंट को इन रियल लाइफ सिनारियो समझा रहे हो तो यू टेंड टू फॉरगेट सम पॉइंट्स व्हिच यू वुड नॉट फॉरगेट व्हेन यू आर मेकिंग अप अ वीडियो फॉर योर चैनल। और उसके लिए हमें वाकई रिटर्न वर्क करना पड़ता है। मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ मैंने पहले उसके पॉइंट्स लिखे होते हैं सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग, इट शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव, यू नो। तो फिर वो आप उस तरीके से उसको करते हैं। अच्छा, और मुझे क्या फायदा हुआ है कि मैंने एक पेशेंट्स की कम्युनिटी डिवेलप की है। मतलब जो भी लोग मेरे YouTube चैनल के ऊपर हैं और कमेंट्स करते हैं, हमारा एक साइड बाय साइड जो है काम ये चल रहा है। मेरा जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने उन सब के कॉन्टेक्ट्स को लेकर हमने एक कम्युनिटी क्रिएट की हुई है। उस कम्युनिटी को हम रेगुलर बेसिस पे जब चाहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम कि उन्होंने स्किन केयर से रिलेटेड लोगों को एक लार्ज कम्युनिटी हमारे पास इस वक्त डिवेलप्ड है। और ये बहुत बड़ा डेटा है जो हमारे पास है। उनको हम जब चाहें स्किन केयर से रिलेटेड मैसेज भेज सकते हैं। हम उनको कोई भी आई हैड द टास्क ऑफ सिलेक्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डर्मेटोलॉजी, एंड टू माय सरप्राइज किसी को स्किन केयर रूटीन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट, दे वर देयर टू बी सिलेक्टेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और उनको कॉन्सेप्ट नहीं था कि स्किन केयर रूटीन क्या होती है। सो R&D इज वन थिंग जो कि मेरी बहुत इंप्रूव हुई है। मेरा मुझे गिफ्ट मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने का, मुझे एक एज मिला है कि मेरी R&D बहुत इंप्रूव हो गई है। मैं चीजों को सर्च करती हूँ, मैं उन चीजों को सर्च करती हूँ जो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमें ना कभी पढ़ाई जाती हैं, ना सिखाई जाती हैं, ना हमारी बुक्स का हिस्सा होती हैं। और मैं उनको सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ और सर्च करती हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट हैं। देन एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो इंस्पायरिंग माई जूनियर्स, आई हैव गॉट अ टीम ऑफ जूनियर्स। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ वेयर आई कैन इंस्पायर माई जूनियर्स और दे लुक फॉरवर्ड टू मी। समटाइम्स दे कम अप कि मैडम आप ना नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं, मैडम नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाएं। आप यकीन करें शुरू में मैं सोचती होती थी कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, और अब मेरे पास एक लॉन्ग लिस्ट होती है जो कि या पेशेंट्स ने मुझे कहा होता है या मेरे जूनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया होता है कि आपने इस चीज के ऊपर बनानी है। और दूसरा, द एंजॉयमेंट, द सेटिस्फेक्शन दैट आई डिराइव्ड फ्रॉम माय ऑनलाइन कम्युनिटी इज जस्ट अनपैरेलल। I mean, if you're at a position where you can influence someone's life, you can bring a positive change into someone's life by just a message, तो इससे ज्यादा बड़ी तो सेटिस्फेक्शन ही कोई नहीं है। और प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन को आप लोगों से बेहतर कौन जानता है डॉक्टर से। मतलब आपका एक मरीज ठीक होके आता है तो आपको कितनी ज्यादा खुशी होती है। सिमिलरली व्हाइल यू आर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, योर वर्ड्स मैटर फॉर देम, और आप उनके लिए पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, दिस रियली गिव्स यू अ सेटिस्फेक्शन आप कह सकते हैं। सो माई प्रैक्टिस हैज ग्रोन, मेरी प्रैक्टिस ग्रो हुई है आफ्टर कमिंग टू सोशल मीडिया। उसमें जो जिस तरीके से लोग मुझे सुनते थे, मुझे लगता है उससे पहले अच्छे तरीके से अब मुझे सुनते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि दिस इज
whatever she is saying, this is by the book, and this is she is following the guidelines. Yeah. She knows what is legal, what is illegal. She knows what are FDA approved, what are non FDA approved, and she knows what's right there in the market, or she knows the pricing. और जब आप उनको प्राइसिंग भी अपना सिंसियरली बताते हैं ना, तो वो पीपल बिकम योर फैन। उनको लगता है कि आप वाकई एक ऐसे बंदे हो जिसके पास वो आ सकते हैं। Yeah. तो मेरे ख्याल में ये बेनिफिट्स मुझे मिले हैं आफ्टर कमिंग टू सोशल मीडिया। I think I hope that that's very helpful for all the doctors that are listening. I want to now take this as a segue to get a little bit into the technical aspects and more directly related to our main topic, that how can all of you people in the audience leverage social media to build your brand as a dermatologist. So part of leveraging social media is this thing called SEO, जिसको हम अगर abbreviation से निकल के बोलते हैं तो it's called search engine optimization. डॉक्टर आयशा, आई रिक्वेस्ट यू टू टॉक अबाउट कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, और इसको कैसे करते हैं, और ये अगर हमारी ऑडियंस वांट्स टू एंटर इनटू सोशल मीडिया, व्हाई दे शुड डू इट एंड हाउ दे कैन डू इट. अच्छा देखें, जिस तरह हमारा होता है ना, हमने स्टाफ मेंबर्स रखे होते हैं और एक स्क्रैच से काम शुरू किया होता है, तो हमें पता होता है कि हमारा स्टाफ क्या कुछ कर रहा है, तो वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू हैव अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम। इसी तरह सोशल मीडिया की कुछ नो हाउ आप डॉक्टर्स को होनी जरूरी है, सो दैट अगर आपने कोई टीम भी हायर की हुई है तो आप उन्हें पूछ सको कि वो कर क्या रहे हैं। दे आर चार्जिंग यू ऑन मंथली बेसिस, व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग फॉर योर चैनल, फॉर योर पेज, व्हाटएवर। तो आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एज डॉक्टर्स हमें कुछ पता नहीं होता, बट स्टार्टिंग फ्रॉम एससीओ जो जरफिशार ने पूछा, तो हम बाकी बातें भी करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज के आपकी जो वीडियो है, जो भी कंटेंट है आपने क्रिएट किया और आपने अपलोड किया, वो किस हद तक विजिबल होगा जब लोग उससे रिलेटेड चीजों को सर्च करेंगे। इसकी आप एग्जांपल ऐसे लें कि पाकिस्तान में अगर मैं कहूं कि टॉप सर्च्ड वर्ड जो है ना, वो दैट वुड बी स्किन वाइटनिंग पाकिस्तान में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका उससे रिलेटेड कंटेंट है, तो आपने उसकी एससीओ में लाजमी तौर पे वाइटनिंग डालना है, वाइटनिंग का वर्ड डालना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ना चाह नहीं रहे होते एज डॉक्टर्स करना, लेकिन हमें करनी पड़ती हैं, बिकॉज इफ यू वांट योर वीडियो टू बी सीन बाय पीपल, इफ यू वांट दैट योर वीडियो शुड हैव व्यूज, और तो आपको ये करना पड़ेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हर वीडियो की करना सीखें, और फिर अपने जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं या आपकी टीम मेंबर्स हैं, आप उनसे पूछें कि आपने इस वीडियो की एसईओ कैसे की है। और जो सक्सेसफुल वीडियोस आपको नजर आती हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, आप उनकी एसईओ देखें कि उन्होंने कैसे एसईओ की हुई है, सो दैट दे आर सक्सेसफुल। कभी कभार ऐसे होता है हमारी एक वीडियो खामखा चल जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी एक वीडियो के मिलियन प्लस व्यूज हैं, एंड वो सिर्फ एक पेशेंट आई थी मेरे पास और उसका फेस इट वाज लाइक वेरी रेड टोमेटो, I would call it a tomato, and that was because she already had applied golden pearl along with some whitening serum, along with egg whites of 4 eggs and blah blah blah. तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटा मैं इसको, कैन आई कैप्चर दिस ऑल, कैन यू से इट वंस अगेन फॉर मी? शी एग्रीड, शी सेड ओके, एंड देन माय स्टाफ कैप्चर्ड इट विद अलॉन्ग विद हर फेस, के उसके फेस के क्या हालात हैं। आप यकीन करें 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन उस मिलियंस ऑफ व्यूज में 70 to 80% वॉज इंडियन पॉपुलेशन और बाकी पाकिस्तानी। और वो इतनी वायरल हुई वीडियो कि उसको लेके लोगों ने रीमेक भी किया। पीपल यूज दैट वीडियो टू मेक देयर ओन कंटेंट। उसको पता नहीं टेक्निकल टर्म क्या होती है उसकी, जब वो वीडियो को यूज करते हैं लोग, I think वो मुझे remixing, when they या remix मे a बी video. रिमिक्सिंग, यस प्रोबेबली रिमिक्सिंग। तो उसकी रिमिक्सिंग भी काफी ज्यादा हुई और उससे उसके ऊपर कमेंट्स भी थाउजेंड्स में हैं। लेकिन उसको बाद में हमें पता चला कि यार ये वायरल हुई क्यों थी वैसे, तो पता चला कि उसकी एसईओ बड़ी अच्छी हुई हुई थी, इस वजह से वो वायरल भी हुई और वो रिलेटेड कंटेंट था। और वो आपकी ना, अगर आप सोशल मीडिया पे, अब आप लोग आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे जब ये चैनल्स बनाएंगे, तो आपको ना ये हैरानी होगी कि इंडियन पब्लिक जो है ना, वो पाकिस्तानी पब्लिक से ज्यादा आपको देखेगी। प्रोबेबली दे आर मोर इन नंबर, Yeah. दे आर वेरी मच इनटू द सोशल मीडिया, एंड वो उनके कंसर्न्स बिल्कुल हमारे जैसे हैं। समटाइम्स वो यहाँ तक कि मेरे से तो रेगुलर बेसिस पे वो दवाइयाँ पूछ रहे होते हैं, एंड देन मेरा अगला सवाल ये होता है कि भैया आपको वहां से कैसे मिलेगी, आई एम इन पाकिस्तान। तो कहते हैं मैडम बस आप लिख दें, हम उसे मिलती जुलती फार्मेसी से निकलवा लेंगे। सो मच सो, और ये आपको करना पड़ेगा। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सोचें, फिर आप ये देखें कि आपकी व्यूअरशिप कैसे बढ़ सकती है। एक व्यूअरशिप भी एक चीज होती है। अच्छा, उसके बाद सब्सक्राइबर्स होते हैं।
यानी आपने चैनल जो है उसको कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और हमें बहुत ही यानी आपने शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैं विमेन ऑफ पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था यूएस कॉन्सुलेट का, और उसमें आई वाज इनवाइटेड एज वन मतलब अचीवर, जिसमें कि वन वुमेन ऑफ पाकिस्तान जो कि सोशल मीडिया पे भी है और जिसकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और वहाँ पे अवार्ड भी दिया गया मुझे। तो मैं वहाँ पे देखा कि वो यूएस कॉन्सुलेट का मेंबर आता है स्टेज पे, और सामने काउंसलर है वो, और सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मे बी थाउजेंड्स, एंड ही आस्क्स कि कौन से लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, एंड देन एवरीबडी वाज लाइक कि ठीक है जी मैं इंस्टा यूज करता हूँ, एंड देन ही सेड ओपन अप द पेज यूएस कॉन्सुलेट, और उसने वहां ओपन करवाया और सबसे सब्सक्राइब करवाया, उसको फॉलो करवाया। मतलब उसे कोई हेजिटेशन नहीं थी कि वो सबसे ये सोशल मीडिया निकलवा के प्लेटफॉर्म ओपन करवा के सब्सक्राइब करा रहे। तो हम हर चीज में क्यों शाय फील करते हैं, हम हर बंदे की टांग खींचते हैं, हम अपने कुलीग्स को प्रेशराइज करते हैं, और मुझे भी बड़े सारे लोगों ने प्रेशराइज किया, बट देन फॉर्चुनेटली आई एम वेरी ढीठ, एंड आई वांट यू टू बी अ लिटिल बिट ढीठ। इफ यू वांट टू बी ऑन सोशल मीडिया यू हैव टू लिसन थिंग्स फ्रॉम वन साइड एंड देन यू नो गिव देम एन एग्जिट फ्रॉम द अदर। Yeah. तो हर चीज को आपने ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देनी, you know, regardless of whatever people say about you, regardless of how people influence you, they build some pressure around you। अगर आपका माइंड फोकस्ड है और अगर आप कमिटेड हैं कि आपने पब्लिक के लिए कुछ करना है, कम्युनिटी के लिए सिर्फ बोलना नहीं है, यानी अपने हिस्से की शमा तो आप जलाएंगे ना, Yeah. बजाय इसके कि वो फलाने ने गलत बात कही, यार ये क्या शाइस्ता लोधी ने कह दिया और फलानी ने कह दिया, और वो तो ये गलत बात कह रही है, वो तो कह रही है कि पीआरपी से 2 महीनों में बाल उग जाएंगे, जबकि ऐसा तो नहीं होता। तो भाई अगर आपने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया हुआ तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप बाकियों को क्रिटिसाइज करें। Yeah. गिव योर वर्डिक्ट टू पब्लिक एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू क्रिटिसाइज अदर्स। This is so important. Learning how to say no, when to say no, and when to draw a boundary, I think is something Pakistani population in general can really benefit from learning a lot. We have some audience members in the asking questions, but we'll take those at the end. So if others, if you have more questions, please feel free to write them in the chat box. Meanwhile, Dr. Aisha, let's move on to the second thing. Um, when we were discussing the setting up of this webinar, you talked about YouTube as a second source of income, and और start में भी आपने बात की monetization के ऊपर। आपने कहा सिर्फ monetization की बात नहीं होती कि आपने consistently upload करना है। So I think that's a very smart thing to do, because in today's age, as all of us, you know, in this economy particularly, हम लोग try कर रहे होते हैं to find more revenue streams. And we forget that social media is a huge free platform that actually can, it will take time but eventually it pays off. So I would love for you to talk about YouTube as a second source of income and how that works, and if you're comfortable sharing, maybe you can share if that's something you've been able to achieve yet or not. यस, जरफिशार, इसमें आई वुड बी वेरी मच ट्रूथफुल, क्योंकि ये द वेबिनार इज फर्स्ट ऑफ इट्स सॉर्ट, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी बात करूँ यहाँ बिल्कुल क्लियर कट, बड़ी ट्रूथफुल, और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर आयशा ने ये बात कही, पता नहीं ये सही कही या नहीं कही। मैं बिल्कुल आपसे अभी सही बात करने जा रही हूँ। देखें, जो मोनेटाइजेशन है, द मोनेटाइजेशन एस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम जो हैं अपनी लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो हम गुजार रहे हैं इन समथिंग विच वी कॉल प्रैक्टिस, and we are you know driving money out of it, because whatever we are getting from our jobs, जो कि मेरे जैसे लोग जो jobs भी कर रहे हैं, it's not even peanuts, and money helps you a lot in building your brand, in I mean broadcasting your skills, in I mean setting up your setup। ये सारी चीजों में मनी का रोल है। मोनेटाइजेशन आपके चैनल की एक खास लिमिट के बाद होती है, और वो 4000 मिनिमम जब आपके सब्सक्राइबर्स हों, वॉच आवर्स हों, और 1000 सब्सक्राइबर्स हों, ये कट ऑफ है आजकल। इसको यूट्यूब रिवाइज कर दे तो पता नहीं, अभी तक रिवाइज नहीं है। 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, जब तक आपका ये पूरा नहीं होता आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, आप मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। तो इसको पहले अचीव करें, फिर मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजें। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो आपको पर मंथ जो पैसे मिलेंगे वो शुरू में बहुत कम होते हैं। शुरू में हमारे होते थे $0.3 पर मंथ, एंड पर 28 डेज का बेसिकली वो कैलकुलेट करता है, 4 वीक्स का। तो इट वाज लाइक $0.3, एंड देन इट ग्रीव टू $1, एंड देन इट ग्रीव टू $5, एंड देन इट ग्रीव टू $10, और उसके बाद जो हमने टच किया, वी टच्ड $50 इन 4 वीक्स।
तो देन अभी वी आर इनटू कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग, जो नेक्स्ट इसका आपको फायदा होगा अपार्ट फ्रॉम मोनेटाइजेशन। इफ यू आर इन सोशल मीडिया, आपको पैसे भी पर मंथ मिलेंगे, लेकिन ये पैसे सिर्फ उस चीज के नहीं मिल रहे हैं कि आपने वीडियो बनाई है, अपलोड की है, लोग उसको देख रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है और यूट्यूब आपको उसके पैसे दे रहा है, बिकॉज यूट्यूब उसके ऊपर अपने एड्स भी लगा रहा है और एड्स की वजह से यूट्यूब कमा रहा है, सो आपको भी कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है। सिर्फ ये मोनेटाइजेशन नहीं है, बट वंस यू आर ऑन अ प्लेटफॉर्म, यू आर विजिबल टू मार्केट एज वेल ना। आप स्किन केयर ब्रांड्स के लिए भी विजिबल हैं, पीपल कॉन्टेक्ट मी कि आप हमारे ब्रांड के बारे में ये बात कह दो, एंडोर्समेंट दे दो, हम आपको जो है ना ये चीजें पैसे दे देंगे। बट देन इट्स मी हु हैज नेवर डन सो। अप टिल नाउ मैंने अभी तक कोई भी किसी भी ब्रांड की एंडोर्समेंट नहीं दी जो मैं नहीं समझती कि है। मैं रेंडमली अच्छी जो हमारे कंपनीज हैं, जो हमारी अच्छी जो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनका मैं रेंडमली मेंशन करती हूँ। बट देन ऑब्वियसली नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस, ये दो चीजें हैं और ये होनी हैं। और जो अच्छे कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके साथ कोलैबोरेट कर भी रहे हैं, वी आर कोलैबोरेटिंग, वी आर इनटू नेटवर्किंग, और ये आपको भी इसका फायदा होगा जब आपकी कोई से होगी, कोई वर्थ होगी। तो इसके अलावा ये होता है कि आपको जब एक एक आप लोगों को पता है ना कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो इट एक्चुअली एलिवेट्स योर वर्थ। फिर आपको इनवाइट करते हैं टीवी चैनल वाले, ठीक है जी, आपको चैनल्स के ऊपर जो लोग नजर आते हैं उनकी कोई ना कोई वर्थ होती है, तो इसलिए लोग उनको बुलाया जाता है। तो आपको फिर कांटेक्ट करते हैं यूट्यूबर्स, आपको कांटेक्ट करते हैं कोलैबोरेशंस के लिए। फिर आपको वो क्या बोलते हैं, पॉडकास्टिंग के लिए लोग बुलाते हैं, क्योंकि लोग आपका वर्डिक्ट सुनना चाहते हैं, उनको पता होता है कि यू आर ऑलरेडी इनटू दिस, यू कैन स्पीक अप वेल। और आप लोगों को ना थोड़ा बोलना सीखना है, डॉक्टर्स को एक तो अपनी शर्म से बाहर आना है। आप लोग पब्लिक के साथ वैसे बोलना तो सबको आता ही आता है, डॉक्टर्स को, आई मीन पेशेंट्स की काउंसलिंग में हम काफी कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जो वीडियो के लिए बोलना होता है वो डिफरेंट होता है। समटाइम्स मुझे भी, हालांकि मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ और अब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मामा बस करें, बट स्टिल समटाइम्स आई हैव टू, कई दफा जो मैं वीडियो बनाती हूँ 8 से 10 दफा मुझे उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है कि वो इस काबिल नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, उसको मुझे अपलोड करना है। बट शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू की मेरी वीडियोस अभी भी मैं देखूं तो मैं हंसती हूँ। कुछ आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, यानी आपने जो बोलना है, अगर मैं अब रेफरेंस नहीं दूंगी, जाहिर है इट वुड गिव अ बैड नेम टू दिस स्पीकर, तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप किया लेकिन वो खुद प्रेजेंटेबल नहीं थे, और उनके प्रेजेंटेबल ना होने की वजह से उनकी वीडियोस की कोई रीच नहीं थी। इफ यू आर एन एस्थेटिक फिजिशियन, इफ यू वांट people to look up to you as an aesthetic physician, probably you should groom up a little bit. और अगर आप नहीं भी हैं तो अपने आप को कर लें। अगर आपने सोशल मीडिया पे विजिबल होना है तो यू हैव टू ग्रूम अप योर सेल्फ, जो कि आप प्रेजेंटेबल लगो, आपने प्रेजेंटेबल दिखना है, आपकी तैयारी भी नजर आनी चाहिए। तीसरा, गैजेटरी, गैजेटरी इज इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव सम गैजेट्स। ये ना सोचें कि मेरे पास कोई हाई फाई कैमरा नहीं है तो मैं प्रोबेबली स्टार्ट नहीं कर सकता। यू कैन स्टार्ट अप फ्रॉम अ सेलफोन कैमरा, कोई अच्छा सेलफोन कैमरा, और आपके पास एक माइक आपको चाहिए। शुरू में तो आप कॉर्ड वाला माइक ही ले सकते हैं, बट देन लेटर ऑन जब आप समझें कि नाउ यू आर इनटू इट और यू हैव डिसाइडेड, आपका प्रोबेशन टाइम खत्म हो गया एंड यू रियली वांट के यू नो कि नाउ यू आर कंफर्टेबल, नाउ यू कैन गो ऑन दिस जर्नी, तो फिर आप ब्लूटूथ भी ले सकते हैं। तो एक आपको कैमरा स्टैंड चाहिए, आपको स्टैंड चाहिए, आपको सेलफोन उसके ऊपर टिकाने की जगह मिल गई, सेलफोन टिका लिया एंड देन आपने एक माइक ले लिया। दिस इज द मिनिमम गैजेटरी दैट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेट अप अ यूट्यूब चैनल। और बाकी जो है बस वो टेबल चेयर आपके घर में होगा, एक बैकग्राउंड आप सेट कर लें और उसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, उसके बाद पहले खुद सुने, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म सारी इनवाइट करें अपने फैमिली से, फ्रेंड्स के साथ। और जब आप देख लें कि आप बोल सकते हैं, आप चीज़ों के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दे। और एक और चीज़ मैं बताऊं, नेगेटिविटी को बहुत रूम मिलता है इस मुल्क में, नेगेटिव बातों को, प्रोपेगेंडास को, क्रिटिसिज्म को, और इन चीज़ों को बहुत रूम मिलता है, बट देन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। तो अपना माइंड ब्रॉडन अप रखें, इसका अपना हॉरिजन वास्ट रखें। आप लोगों को सोशल मीडिया इसलिए ना यूज करें कि आपने इससे किसी की किसी कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना है, किसी को लेट डाउन करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका शुरू में बहुत फेम मिलेगी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होगी। उसके बाद कोई आपको नहीं सुनेगा, क्योंकि आप अपनी वर्थ गिरा चुके होंगे इस हरकत से। इसलिए कोशिश करें कि बी पॉजिटिव और ब्रिंग दिस चेंज इनटू योर लाइफ एज वेल, कि आप नेगेटिव ना हो। अब ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत सुने,
आप अपनी तरफ से पॉजिटिव कंटेंट लोगों को दे दें, ताकि लोगों के पास ऑप्शन हो अच्छा भी सुनने की। तो अपने सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी बंदे को लेट डाउन ना करें कि वो उसने गलत कहा, आपने सुना होगा उसकी वीडियो में उसने गलत कहा। एक और चीज होती है उसमें, उसको रोस्टिंग बोलते हैं, वो भी यूट्यूब में आप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर पब्लिक किसी वीडियो को बहुत ज्यादा देख रही है, उसके मिलियंस में व्यूज हैं, और उसमें किसी गलत चीज को एडवोकेट किया हुआ है, एंड यू एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एज अ प्रोफेशनल पर्सन, यू थिंक दैट दिस मिसकंसेप्शन नीड्स टू बी एलिविएटेड क्वाइट वेल इन टाइम, तो फिर आप क्या करते हो कि आप उस वीडियो का रेफरेंस दे सकते हैं, उसको रोस्टिंग की वीडियो बना सकते हैं, बट ये नहीं कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं या आप उसको कोई बैड नेम उसको बुला रहे हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि आप जब वीडियो बना रहे हैं तो उसका रेफरेंस देके आपने कहना है कि प्रोबेबली ये जो है इतना ज्यादा इस चीज में ये क्वालिफाइड नहीं है। आई एज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस कंटेंट, बट मैं आपको एक अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ। आप उसको ऑल्टरनेट साथ में ऑफर करें। अगर आप ऑल्टरनेटिव साथ में ऑफर नहीं कर रहे तो फिर खाली रोस्टिंग का भी कोई फायदा नहीं है। यानी आपने कोई ऐसी चूज अगर आपने किया है कि आपने किसी को आपने डिफाइन करना है कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट अलाउड, या दिस इज नॉट सेफ फॉर पब्लिक, तो फिर आप सेफ्टी भी साथ में मेंशन करेंगे। Yeah. और थोड़ा सा हम डॉक्टर्स को थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आना पड़ता है सोशल मीडिया पे। जब हमने आना है तो हमें अपनी जो ईगो होती है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिकॉज पब्लिक आपको एज डर्मेटोलॉजिस्ट जब जानती भी है तो पब्लिक आपको कभी कभी बड़े ओपन कमेंट्स दे देते हैं। Yeah. समटाइम्स वो बड़े अजीबो गरीब भी होते हैं, तो आपको उन्हें बाईपास करना सीखना आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज को वैल्यू देनी है, किस चीज को नहीं देनी, और काफी चीजों से कता नजर होके आगे मूव करना पड़ता है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल है जैसे बचपन में हमें अम्मी अब्बू कहते थे ना कि रास्ते में जो कीचड़ होता है उससे पाँव बचा के जाओ, उसमें पाँव डाल के नहीं जाना, पाँव बचा के जाना है। सिमिलरली आपके रास्ते में स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, आपने उनसे बच के जाना है, उनको ठोकर मार के नहीं जाना, बिकॉज आप ठोकर मारेंगे आप अपनी आप को इंजरी देंगे ऐसे। तो इसी तरह सोशल मीडिया पे है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं, मेरे चैनल पे बड़ी लोग नेगेटिव लिख देते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक मेरे पास वो आर्मी का बंदा आ गया क्लिनिक में, उसने आके बहुत शोर मचाया, मैं आर्मी से हूँ, आपको पता नहीं है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। अब वो मेरे स्टाफ ने उसको बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं किया। एंड देन व्हाट हैपेंड के जनाब, एक सेकेंड में इसको जरा, ओके। तो अब उसको जब अकोमोडेट नहीं किया तो उसने क्या किया जी, मेरे उसको चैनल का पता लगा, उसने चैनल पे जाके वो जनाब उसने मैसेजेस किए कि ये ऊल फूल किस्म का उसने लिखा। बट देन एक पॉजिटिव इमेज अगर आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको मैंने नहीं रिप्लाई किया, मेरी सोशल मीडिया टीम ने रिप्लाई नहीं किया, बल्कि उसको पेशेंट्स ने रिप्लाई किया कि यू आर रॉन्ग, we have been to this doctor and we have been under her treatment, she is not as you have mentioned, probably you have some wrong experience. Yeah. एंड देन जब हमने डिग आउट किया कि ये है कौन जो इतना नेगेटिव बोल रहा है, तो पता चला ये वही आर्मी पर्सन है जो क्लिनिक में आया था, एंड ही डिड नॉट वांट टू वेट, एंड ही वांटेड टू बी गिवन लिटिल मोर रिस्पेक्ट देन अदर पीपल। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों के मोटिव्स होते हैं आपको नेगेटिव पोर्ट्रे करने के, आपके बारे में नेगेटिव लिखने के, बट देन यू हैव टू बी over and above all these Yeah. things. Yeah. I think those are really helpful tips. Negativity is something that is there, but we should all. I mean, there's nothing you can do about it. लेकिन आपका जो point था कि if you move on from it, if you don't give it attention, you become the bigger person, and it helps you miles and miles in the future. I just have a small announcement. We're nearing towards the end of the session. So, everyone who has joined us today, there's a small surprise for you, courtesy of Tayyip Traders. I will be telling you guys what it is at the end, but please stay till the end, and I promise you, you will be so happy. Uh, but before that, Dr. Aisha, just to wrap it all up, आपकी कोई tips and tricks for a better social media presence, for growth in your social media, what would those be? और उसके बाद we'll go back to the audience questions जो हमसे पूछे गए. ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा रैप अप कर दूं कि बहुत शॉर्ट में बोलूंगी, कंसाइज बोलूंगी। इज इट इम्पोर्टेंट टू बी ऑन सोशल मीडिया? यस, इट इज इम्पोर्टेंट as qualified people for us to be on social media while everybody else is already on social media. ठीक है, does your voice matter? Yes, your voice does matter. You are important to your family already, you are, you know, you are important for your family. Similarly, you are important for the clientele you're serving. Yeah. Everybody has his or her own clientele, her own patient circle, आप उनके लिए important हैं. Number 3,
क्या आपको अपनी हेजिटेशन से बाहर आना चाहिए? यस, यू हैव टू कम, यू हैव टू ओवरकम योर हेजिटेशंस। आपको किसी भी हेजिटेशन में नहीं आना। आपको हेजिटेशन से बाहर आने का फायदा क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी ग्रो करेगी, आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकते हैं, आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, आप एक पेशेंट से अपने फैंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप एक बिगर कम्युनिटी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन होने के पर्क्स इंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसके फायदे हो सकते हैं। Yeah. ये सारे फायदे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। आप एक पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू ये काम करना चाहते हैं, आप इंस्टा के थ्रू काम करना चाहते हैं। हर सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। सो यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट वीडियोस आती हैं, लॉन्ग वीडियोस आती हैं, फेसबुक के ऊपर लॉन्ग वीडियोस भी आ जाती हैं, उसके ऊपर रील्स भी चलती हैं, उसके ऊपर स्टोरीज भी होती हैं, उसके ऊपर पिक्चर्स भी हैं, पोस्ट भी आ जाती हैं, रिटन कंटेंट भी आ जाता है। इसी तरह इंस्टा है, उसकी जो उसके क्या बोलते हैं, उसकी जो वीडियो की जो साइज होता है, उसको डायमेंशंस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं इंस्टा की, और वो आपकी हर किस्म की वीडियो को एनकरेज नहीं करता, उसको उस डायमेंशंस चेंज कर देता है। तो पहले आप डिसाइड करें आपने करना क्या है। स्टार्ट स्मॉल बट बी कंसिस्टेंट। डू नॉट जस्ट स्टार्ट विद ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट द सेम टाइम। अब जिस तरह हमने यूट्यूब के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, मैंने, और फेसबुक के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है इन दो चीजों के ऊपर, नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू मूव ऑन टू इंस्टाग्राम। और इसके लिए मेरी अब टीम भी थोड़ी सी मेच्योर हो गई है। अब जो है, मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है कि मैंने उनसे क्या क्या कुछ पूछना है, वो कर भी रहे हैं, कुछ के नहीं कर रहे। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा लूटा भी जा रहा है। अच्छा, बिफोर तैयब ट्रेडर्स केम इन टू मार्केट, मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे जो मशीन प्रोवाइडर्स थे, अव्वल तो वो कॉल्स करते रहते थे, हम जलील होते रहते थे, वो आते ही नहीं थे मशीन रिपेयर करने के लिए। दूसरा, दे वुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इवन ओनिंग द मशीन, कि ये मशीन ही उनकी है। वो कहते थे नहीं नहीं मैडम, ये लगता है आपने ना कहीं और से मशीन ली हुई है, उसके पार्ट्स कहीं और के हैं। अब देन तैयब भाई ने आके हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट दी और हमें कॉन्फिडेंस दिया कि ही वाज जस्ट अ कॉल अवे। आप कॉल करोगे, तैयब भाई आपकी मशीन में इशू आ रहा है, देयर तैयब ट्रेडर इज, के वो आते हैं आपको करें। सो ये कॉन्फिडेंस होता है। और सोशल मीडिया में भी आपने जो भी चीज प्रोवाइड करनी है, वो अपनी ऑथेंटिसिटी से आपने प्रोवाइड करनी है। आप स्टार्ट स्मॉल, आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लें और उसके ऊपर फोकस करिए, उसको पढ़ें। इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके ऊपर जिस तरह आप अपने प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेते हो, इसी तरह अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर्स देखो, सक्सेसफुल फेसबुक के लोग देखो, अच्छी वाली जो व्यूज वाली वीडियोस हैं उनको देखें कि वो क्यों इतनी व्यूअरशिप उनकी है। ये सारी चीजें करें। और दूसरा ये कि आपने जो टीम हायर करनी है, शुरू में बहुत ज्यादा उसके ऊपर पैसे ना लगाएं। थोड़ा सा काम आप खुद भी सीखें, और आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। आप अपने फैमिली में देखें कौन सा बंदा थोड़ा सा टेक्नो है, इस बारे में थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। आपके कजन्स में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो थोड़ा सा आईटी पर्सनल है। और इसमें आप ये देखें कि मेरे इवन बच्चे कभी कभार मेरी हेल्प कर देते हैं। कुछ मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं भी अभी भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। जैसे मेरी रिसेंटली एक वीडियो है, हाउ टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उसका टाइटल था हाउ टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यूट्यूब में सर्च करके देखें, आयशा गयास हाउ टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो वो सारी वीडियो मेरी बेटी ने एडिट की हुई है। शी इज अ ग्रेड 6 स्टूडेंट। एंड उसने मुझे एक मुझे गिफ्ट दिया। उसने मतलब उसने कहा ममा आपने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसको एडिट कर दिया है। तो अब उसको हमें इतनी खुशी हुई कि उस बच्ची ने इतनी है इसके ऊपर मेहनत की है कि हमने उसमें जरा भी अमेंडमेंट्स नहीं कराई, और हमने उसे एज इट इज पब्लिश किया। और अगर आप देखो तो वो एक बच्ची ने की हुई। अगर ग्रेड 6 का बच्चा कर सकता है तो ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा सीखें भी, ताकि आप उनसे पूछताछ कर सकें। तो बाकी जो टिप्स मेरी हैं वो ये हैं कि एकदम से बहुत ज्यादा पैसे ना लगाएं। जो हमारी सोशल मीडिया टीम है वो भी इस बारे में, हम अभी भी मैं समझती हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि हम डे बाय डे बहुत चीजों में सीख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोग जो हैं इसको समझने सीखने की कोशिश करें, सारे का सारा दूसरों के ऊपर रिलाई ना करें। अगर किसी भी हवाले से आपको मेरी हेल्प रिक्वायर्ड हो, आई एम ऑल देयर, माई टीम इज ऑल देयर। वी आर एक्चुअली hoping towards making doctors more comfortable with social media by making up a team जो कि उनको इन टेक्निकलिटीज में हेल्प करे। अगर इन टेक्निकलिटीज में आपको कोई डिफिकल्टी आती, कोई इशू आता है, कि आपको कोई बंदा ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मंथली मुझे तो 50,000 ही चाहिए इस चीज के, या 1 लाख रुपीज चाहिए, तो जस्ट टॉक टू मी। वी कैन वी कैन हैव अ बेटर सोल्यूशन। हम कोई मिडवे रास्ता देख सकते हैं, हम कोई आपको मे बी कोई रीजनेबल कोई इकोनॉमिकल सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ, मे बी। तो आई एम ऑल देयर फॉर योर हेल्प। आज का भी मेरा यही पर्पस था, और होपफुली मैंने अपनी जो बातें आप तक कन्वे कर दी हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो फिर फिशार मुझे बता देंगे। Thank you, Dr. Aisha. I think that was super helpful. Just to wrap it up, I think everyone in the audience, it is really important that you guys have a social media presence, because coming from Gen Z, हमारा जो default brain wiring है ना, वो है कि हम कुछ देखते हैं and we go on social media and we see
what is the presence of this person, how much weight do they have, can we trust them or not. So things are changing, and as times change, uh, successful people are the ones who change with the time and who don't stay behind. वन टेक्नो पर्सन ओनली वुड हेल्प यू। बाकी तो आप खुद भी थोड़ा बहुत सीखें, क्योंकि खुद कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग एनीथिंग आप इसमें जंप नहीं कर सकते। आप खुद थोड़ा सा सीखें और एक आधा बंदा हायर कर लें जो आपकी वीडियोस को एडिट कर दे। Great, thank you so much everyone for joining. Now for the gift. So everyone who is in this call, if you can just take a picture of your screen or a screenshot of your phone and send it to either the number that sent you the link of this webinar or to Tayyib Saab. There's a voucher of 50,000 rupees that you can apply to any machine of your choice. It's a discount that is only for people that attended this webinar, and we wanted to facilitate this because, personally speaking, I think in the US there's a big culture of collaboration, but in Pakistan we don't have the trend that much. So just as a token of appreciation for taking your time and coming and joining us today, and actually learning from Dr. Aisha Gyas, because you're also investing in your career by being here with us today. So this is a small gift from us. 50,000 rupees off of whatever you need, but you have to send the picture, on which we will issue a token for you, and you can apply it to any device that you want. With that, I'll be wrapping up the floor. Thank you so much, Dr. Aisha. I'm so happy we were able to do this together. This is our Thank you very much, Zarfishar. And one last message from my side. After that, you can wrap up and say bye bye. Well, my last message would be कि आप मैं सिर्फ एक बात आपको लास्ट में कि बेस्ट डॉक्टर अपना माइंड थोड़ा सा बड़ा करें, ब्रॉडन अप करें, प्रमोट करें, लेग पुलिंग ना करें। हो सकता है कोई चीज आपको अच्छी ना लग रही हो, दूसरे की प्रायोरिटीज, लाइक्स और डिसलाइक्स से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आ रही है, जस्ट डोंट बी वेरी क्रूअल इन सेइंग कि आपने ये काम नहीं किया और ये अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में हम डॉक्टर को थोड़ा सा लर्न करने की जरूरत है। हमारी कंपनी प्रोफेशनल Dr. Aisha. I think प्रॉब्लम your audio is it's breaking a little bit. If you can hold the wire a little farther from you, and then repeat that. Okay, so I just wanted to say that maybe we as doctors need to broaden up our horizon, and we need to be, positive influencers for our peers, for our colleagues, for our juniors. थोड़ा सा हमें एक दूसरे को ज्यादा प्रमोट करना है, दूसरों की खुशी में ज्यादा खुश होना है। और मेरे ख्याल में आज के सेशन के बाद मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे भी जब आप लोग आते हैं तो हमें एक दूसरे को प्रमोट करना है। और आप यकीन करें, दिस इज द बिगेस्ट की टू सक्सेस ऑन सोशल मीडिया। आप किसी एक के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे फायदा दोनों को होता है। ये मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है सोशल मीडिया में। आपको कोई चैनल वाले बुलाते हैं या आपको कोई पॉडकास्ट के लिए बुलाता है या आपका कोई और आपको आपके साथ वीडियो क्रिएट करता है कोलैबोरेशन में, तो आपको डबल फायदा होता है। जितनी ग्रोथ आपकी पहले चल रही होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है 2 टाइम्स। उसकी भी मल्टीप्लाई होती है जो आपके साथ कर रहा होता है कोलैबोरेट, और आपकी भी होती है। इसलिए कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें दिल छोटा ना करें। ये ना सोचें कि मुझे एक छोटे बंदे ने बुलाया है या मेरे मुझे वो तो बंदा इतना मशहूर ही नहीं है जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिव है तो यू शुड कोलैबोरेट। Absolutely useful. The purpose of Let's Talk Aesthetics was the same, because while we've learned from many brilliant doctors across Pakistan, we felt that there was a strange kind of a gap. And I think, Dr. Aisha, what you're doing and your ability to help not only your juniors but also maybe other experienced people if they want to learn from you, I think it's really it's really great for the industry. और हम सबको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि as an industry we will grow together and everyone will get a bigger piece of pie if we all work together with each other and we help and support each other. Pakistan has 230 million people.
तेईस करोड़ एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है हमारी आवाम का. There's enough for everyone to go around. So in the future, let's hope to be positive. Let's hope to uplift each other. And I really appreciate all of you taking the time to come today, and particularly to Dr. Aisha Vyas for all of her wisdom and all of her time and her amazing energy, which I think made this session super, super engaging. Thank you, everyone, and until next time and episode 2, we'll see you guys then. Thank you, and Allah Hafiz.